गाय को माता क्यों बोलते हैं? अपने को एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाएगा, बात खत्म। वी नेवर इंटेंटेड टू गेट इनटू ऑल दिस, बट अगले 1 साल तक हमको इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि गाय को माता क्यों। जो हम लार्ज स्केल सोलर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसमें हम जो लोकल टेम्परेचर है उसको 5 to 6 डिग्रीज तक बढ़ा देते हैं ऑन डे 1। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम, सुस्वागतम, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस एक्सपर्ट टॉक शो में। आई एम योर होस्ट फॉर द डे, विपुल एम माली, फाउंडर ऑफ पोस्ट रेज्यूमे एचआर कंसल्टेंसी, and we will have Madhukar Swayambhu, who will be speaking on water and water bodies and their social economic impact. It will be an amazing session, and this will be our expert talk show episode number 160. So stay tuned. Before we invite our expert of the day, don't forget to subscribe our YouTube channel Vipul the Wonderful and press the bell icon to get the regular updates, and do share this session with your friends and family also. So it's time to invite our expert of the day. Yes, Madhukarji, welcome on the show. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much for having me here, sir. It's a pleasure. Same here. It's our pleasure, and would love to know this amazing thing. आप जो ये एक amazing initiative आपका है, we would love to know more about that and what is their social economic impact on the environment. So would love to know that and more details. So before we start the session, please tell me something more about you and your life journey to begin the session. Right, sir. So to begin with the life, my father was an army officer. He was a 71 war veteran. Um I grew up from all across the country because हर 3 साल में यहाँ से वहाँ पोस्टिंग हो जाती थी. He retired as a lieutenant colonel, and I grew up across the cantonments. I started my professional journey into IT communication networking way back in 1995. और उस टाइम पे campus wide networking was not a course in India, so I did various manufacturers courses. मैंने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया फॉर ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 2 decades. ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, दिस वाज नोवेयर रिलेटेड टू व्हाट वी वर डूइंग. वी आर 3 founders. I am the oldest one. Then we have Chandrasekhar, and we have Pankaj, and all 3 of us were working into IT communication network backbone industry into different multinational companies. And it so happened कि हम लोग मतलब 1995 में there was no internet. Internet was a luxury. It was only available to filthy rich people and to chief ministers and prime ministers of India. It was era of cyber cafes, you can say. नहीं, उस समय साइबर कैफे भी नहीं आए थे. Actually, internet was limited to Delhi and Mumbai. There was a company called Videsh Sanchar Nigam Limited, which was the only company which was providing internet. और Oh, आज की डेट में जो हम अपने मोबाइल फोन में जो इंटरनेट लेके घूमते हैं, that is giving us a speed of about 20-30 Mbps, whereas that was a era when 19.9 kbps का जो लाइन होता था, दैट यूज टू कॉस्ट एनीवेयर अबाउट 25,000 रुपीज टू अबाउट 1 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना डेडिकेटेड बैंडविड्थ चाहिए. my goodness. So we presented this concept to Department of Telecom. उस समय कोई BSNL वगैरह टाइप की चीज़ नहीं होती थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम होता था. तो उनको हमने बोला कि भाई इंटरनेट इज नॉट सपोज टू बी लिमिटेड टू who's who of the country. It should reach the common man's hand. So पहला प्रोजेक्ट बना नेशनल इंटरनेट बैकबोन, एंड दैट वाज व्हाट वी वर वर्किंग अपॉन. उसके बाद फिर स्टेट वाइड नेटवर्क्स बने, आर्मी के नेटवर्क बना, रेलवेज का नेटवर्क बना. 2010 में वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड CCTNS, Crime and Criminal Network Tracking System, which was to connect every police station to state police headquarters, to state home ministry,
State Crime Records Bureau and in turn to the National Crime Records Bureau and National Ministry of Home. तो वो प्रोजेक्ट जैसे एक तमिलनाडु का एक प्रोजेक्ट था, सो इट वाज अबाउट 1200-1300 करोड़. दैट वाज अ सब्सटैंशियली बिग प्रोजेक्ट. और हम तीनों जो अलग अलग कंपनीज में काम करते थे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारा साथ बैठना होता था फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो उसी टाइम पे इट सो हैपन के एक तो आईटी इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा करती है, सो एवरीबडीज बैंक अकाउंट वर फुल एंड लंच टाइम में पेट भी फुल है. तो दिमाग में विचार बहुत आते हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है और भूख भी नहीं लगती है तो आपको विचार बहुत आते हैं. तो कनॉट प्लेस में दिल्ली में हमारा ऑफिस था. सो वी वर जस्ट टेकिंग अ वॉक आफ्टर द लंच, और हमने देखा कि गाय जो है वो एक पन्नी में बंधा हुआ कचरा जो है उसको खा रही. सो दैट वाज अ न्यूटन मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. डिबेट हमारी ये चालू हुई कि हम एक तरफ गाय को माँ बोलते हैं हमारे कल्चर में, दूसरी तरफ गाय जो है वो बेचारी कचरा खाने को मजबूर है. सो द सेकंड गाय सेड के सर जो हम बोलते हैं वो करते थोड़ी है. अब वैसे तो हमारे कल्चर में माँ बाप भगवान होते हैं, आधे से ज्यादा माँ बाप तो वृद्धाश्रम में है. True. That's a tragedy. That's a tragedy. Yeah. Then Pankaj, who is the youngest one in us amongst us, he said कि सर वैसे तो हमसे कोई पूछे कि हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि परिवार पालना है, बीवी बच्चे हैं. अब एक्चुअली देखो तो बच्चे तो आया पालती है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों तो ऑफिस गए हुए हैं. True, very true. So we thought कि are we progressing as a society or we are regressing as a society? हम अपना वैल्यू सिस्टम को बिल्डअप कर रहे हैं कि वो डिमिनिश होता जा रहा है. सो दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन. एंड फाइनली वी कंक्लूडेड कि यार अच्छा लंच टाइम खत्म हो गया, वापस जाके काम पे लगना है, तो अपन एक चीज कंक्लूड करते हैं कि अगर हम लोग सब आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, अपने को नहीं मालूम अपने कल्चर के बारे में, हम लोग गधे हैं, बट देर आर वेरी नॉलेजेबल पीपल आउट देयर इन द मार्केट. तो हम जब जाके लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि गाय को माता क्यों बोलते हैं, अपने को एक सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाएगा, बात खत्म. वी नेवर इंटेंटेड टू गेट इनटू ऑल दिस, बट अगले एक साल तक हमको इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि गाय को माता क्यों बोलते हैं. सो दैट वाज द टाइम व्हेन वी टुक अप लंच के नहीं यार ऐसा है कि भगवान ने शायद संस्कृत इसी दिन के लिए सिखाई थी, हम लोग खुद से अपनी रिसर्च करते हैं. अब गाय को माता क्यों बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आंसर मिलने से रहा. सो वी थॉट के ठीक है, हम अपने वेद पुराण उपनिषद को पढ़ेंगे और अपने को आंसर मिल जाएंगे. सो दैट वाज 2011, 1 जनवरी 2011 वी डिसाइडेड कि यार हम अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करें. सो दैट वाज द पैशन एंड आईटी इंडस्ट्री वाज द प्रोफेशन. देयर वर नो मिक्स एंड मैच. अगले 5 साल तक हमने पहले वेद पढ़े, फिर 18 पुराण पढ़े, फिर 108 उपनिषद पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं. तो पिछले मतलब वो जो जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में वो आज भी चल रही है. और वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि गाय को माता क्यों बोलते हैं. दैट वाज द की ऑब्जेक्टिव. बट एक वो साइंस में एक टर्म होती है ना, सेरेंडिपिटी, कि आप ढूंढ रहे थे डायरी और मिल गए पुराने लेटर्स, राइट. सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली पाउंस्ड अपॉन दिस अप्रोच के जो अभी जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, अर्बन फ्लडिंग है, ड्रॉट्स हैं, एयर पोल्यूशन है, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं विद द इन्वायरमेंट. और ये इन्वायरमेंट को वापस से रीबिल्ड किया जा सकता है, वापस से रीस्टोर किया जा सकता है through the knowledge that we explored into our own scriptures. Sure. Now, by 2016, we were ready with a theoretical technology after going through all the scriptures. तो फिर ये हुआ कि यार या तो हम भूल जाएं कि हमने कुछ पढ़ा है, या फिर हम अब दो कश्ती में सवार होकर नहीं चल सकते. We need to take a call that whether what we have studied is actually practically implementable also or not. So हमने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की 4-6 महीने. अब ये समझ में आया कि यार जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, दैट टाइम मैन वाज अ सोशल एनिमल. आज मैन इज अ कमर्शियल एनिमल.
अगर आपके किसी भी बात में कॉमर्स नहीं है तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। ट्रू। दूसरी चीज, हम जाके बात करने वाले थे वेद पुराण उपनिषद की, तो जो पहला ऑब्वियस रिस्पॉन्स होता है, यार अच्छा मार्केट में नया बाबा आया है। सो वी डिडंट वांट टू गेट स्लॉटर्ड इनटू दैट माइंडसेट आल्सो, जो स्टीरियोटाइप है। So, and then obviously when we had invented a technology and we were going out to implement it, उसको एक टर्म भी देना था, एक नया टर्म कॉइन करना था। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज फैक्टर्स, व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि क्योंकि हमारी जर्नी गाय की वजह से स्टार्ट हुई, सो वी picked up cow, and because economics is very important, we merged the two words together and we called it cownomics technology. क्योंकि आप किसी से भी बात करते हो कि आपने क्या किया है, तो वो आपके मीटिंग फिनिश होने के बाद पहला काम करेगा, जाके गूगल करेगा व्हाट इज काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। तो वो टर्म ऐसी होनी चाहिए कि वो राइट हिट उसको मिले, उसको राइट इंफॉर्मेशन मिले। सो दैट इज व्हाई वी coined this term cownomics technology, and then we started working on the technology. The next 5 years we spent in field experimentation to perfect the technology, because अभी तक जो भी 2016 तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो थियोरेटिकल थी, वो कहीं पे इम्प्लीमेंट तो हुई नहीं थी। एंड नेक्स्ट 5 years वी हैड गिवन इट टू आवरसेल्फ कि यार पहले तो बैंक बैलेंस देख लो कितना है, कितने साल हम सस्टेन कर सकते हैं बिना नौकरी के, एंड देन वी विल टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो हमने देखा कि बैंक बैलेंस इतना है कि 10 साल चल जाएगा, तो हमने कहा अभी जाके अब इम्प्लीमेंट करना है तो लोग ऐसे फ्री में तो कुछ दे नहीं देंगे, वहां भी हो सकता है पैसे खर्चे हों, हमको सारे प्रोजेक्ट फ्री में करने पड़े, कोई हमको पैसा देने को राजी भी नहीं होगा। तो लेट्स टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ 5 years, 5 साल में आर्या पार। या तो अपन नमस्ते कर लेंगे कि भाई ये कुछ नहीं है, सब मोह माया था, लेट्स गो बैक टू द इंडस्ट्री। 20 साल 25 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद इतना तो था कि 5 साल के सबैटिकल के बाद वापस से नौकरी मिल जाएगी। ट्रू। या फिर हम आईटी इंडस्ट्री को करेंगे नमस्ते एंड फुल टाइम वी विल गेट इनटू दिस। So 2016 we started, and 2021 we registered Vedic Srijan LLP, which is a climate tech startup, and we work on environmental restoration with technologies which are deeply rooted into Vedic science. So that has been the journey so far. अभी तक हम लोग 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली, which are spread over 30+ cities in 13 states, and we have saved more than 2 million people from multiple diseases because the environment has turned healthy, and there has been a socio-economic impact, there has been environmental impact, we have done biodiversity conservation. Every day, even as we speak right now, there are more than 100 million liter of raw untreated sewage being treated by our technology and being transformed into usable water. More than 100 million liter of groundwater recharge has happened because of our technology. On a daily basis, it happens every day. So that has been the journey so far. So that's amazing. That's a very short summary of your 20 years of experience in IT and additional 10 years of experience of this research, Vedic research, and environmental restoration. So that was amazing, and you rightly explained what has triggered you in this way, the Newton moment. That was epic one. And so was there a specific moment or incident that made you feel this was the purpose, this was your purpose? See, as far as the environmental degradation is concerned, see, IT industry में multinational में काम करने की वजह से globe trotting तो हम कर ही रहे थे. Every now and then there was a meeting, sometimes in Taiwan, sometimes in Middle East, कभी टर्की में हो रही है मीटिंग, कभी यूरोप में मीटिंग हो रही है, and we saw that everywhere the degree could be different, but everywhere all the urban problems remain the same. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हर शहर में हो रहा है, एयर पोल्यूशन हर शहर में बढ़ रहा है, सरफेस वाटर कंटामिनेशन हर शहर में बढ़ रहा है। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो सब जगह थी और हमें ये दिखता था। व्हाइल आवर फोकस वाज आईटी, वी वर नोवेयर लिंक्ड टू इन्वायरमेंट, एंड in fact, as a matter of fact, IT industry was one of the polluters, बिकॉज हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसके अंदर वो बाद में RoHS का स्टैंडर्ड आया कि भाई आप
हैवी मेटल्स को यूज नहीं करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट उससे पहले तो हम हैवी मेटल्स का यूज कर ही रहे थे इन द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और वो सारा का सारा अल्टीमेटली लैंडफिल में जाता था, तो हेवी मेटल्स और मिनरल्स जो है वो ऐड होते थे सॉइल में। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम थी जो हमको दिखती भी थी, बट वी यूज टू इग्नोर, बिकॉज वो हमारा फोटे नहीं है, वो हमारा डोमेन नहीं है, व्हाई गेट इनटू इट। बट जब हमने ये रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें समझ में आया कि अब जैसे जब हम जाके लोगों से पूछते थे कि भाई गाय को माता क्यों बोलते हैं, there are plenty of people who used to claim that they understand our tradition and culture inside out. तो हमने जस्ट जाके लोगों से पूछना स्टार्ट किया। पहले 1 साल तो हम घूम के लोगों से ही पूछ रहे थे कि गाय को माता क्यों बोलते हैं। तो फिर अब अजीब-अजीब से जवाब आते थे, जो कि जवाब जो है वो एक दूसरा सवाल खड़ा कर देते थे। जैसे गाय को माता क्यों बोलते हैं, तो भई सिंपल सा आंसर है, गाय तो दूध देती है, तो दूध तो माँ देती है, तो इसलिए गाय माता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन उठेगा कि यार गाय दूध तो बकरी भी देती है, राजस्थान में चला जाओ ऊँटनी भी देती है, तो उनको क्यों नहीं बोलते हम माता? ट्रू, ट्रू। तो देन देयर वाज़ नो आंसर। फिर कोई भाई साहब का ये स्टैंड पॉइंट था कि यार इसमें 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो हमने कहा यार हाँ, एक आधा हमको भी दिखा दो, हमें तो नहीं दिख रहा। बोले भागो तुम लोग विधर्मी लोग। यार एक आदमी तुम्हारे पास अपनी जिज्ञासा लेके आया है, और ये जिज्ञासा तो उसके मन में उठी ना, दैट इज हिज इंटरनल क्वेरी। आप पूछते हो कि सवाल, आप जवाब ये दे रहे हो कि अगला सवाल पूछो ही मत, तो दैट वाज शेयर स्टूपिडिटी। अब जब हमने रिसर्च किया तो हमको ये समझ में आया कि पिछले 5000 सालों में ह्यूमन इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड 17 मेटल्स एंड मिनरल्स। अब ये मिनरल्स का हम क्या कर रहे हैं, जो साइकिल है उसको रोक दे रहे हैं। हम माइनिंग करते हैं, गोल्ड निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, और उसको प्रोडक्टाइज करके रख देते हैं। तो हमने तो उसकी साइकिल रोक दी ना। अगर हम इसी तरीके से 17 मेटल्स और मिनरल्स की साइकिल को रोकते चले जा रहे हैं, तो अगर वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, देन द इंटायर प्लैनेट शुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है? और गाय को माता सिर्फ ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई गाय मनुष्यों की माता है। गाय तो पूरी सृष्टि की माता है। ट्रू। तो ऐसा क्या है जो गाय कर रही है कि उसको वो माता का दर्जा मिला हुआ है? भाई आप देखिए ना, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, जस्ट इमेजिन शिव परिवार आप अपने दिमाग में लाइए। देखिए उसमें बैल भी है, उसमें सर्प भी है, उसमें शेर भी है, उसमें मोर भी है, उसमें चूहा भी है, राइट? अब चूहे को सांप खा जाएगा, सांप को मोर खा जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ देम आर सिटिंग टुगेदर इन अ पिक्चर विदाउट बीइंग अफ्रेड, राइट? लेकिन इनमें से किसी को भी हमने माता का दर्जा नहीं दिया हुआ है। जस्ट इमेजिन, राइट? तो हम नेचर को तो वैसे भी वर्शिप कर रहे थे ना। ट्रू। हम हर पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी भगवान के साथ एसोसिएट करके अगरबत्ती तो दिखाते ही हैं, दीप तो दिखाते ही हैं। तो फिर माँ का दर्जा सिर्फ गाय को क्यों? उसका रीजन सिर्फ ये था कि कहीं पे भी मनुष्यों की वजह से यदि धरती का ये कंडीशन आता है कि इट कम्स ऑन स्टैंड स्टिल, वो रिप्लेनिशमेंट चलता रहे। ये जो 17 के 17 मेटल्स और मिनरल्स है, ये रिप्लेनिश हो रहे हैं वापस टू द प्लैनेट बिकॉज ऑफ द काउ। गाय के गोबर और गोमूत्र में वो 17 के 17 मिनरल वो कहाँ जाते हैं? धरती पे ही जाते हैं ना। धरती पे ही धरती से वापस वो साइकिल रिप्लेनिश होती रहती है। ट्रू, ट्रू। इसीलिए गाय को माता बोलते हैं। गाय को माता इसलिए नहीं बोलते कि भाई हमारी गौ आधारित अर्थव्यवस्था थी, कि गाय हमको दूध देती है, कि गाय जो है वो बहुत ही निरीह और मतलब हर्बीवोर प्राणी है। ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो ये चीज हमको समझ में आई कि भाई रिप्लेनिशमेंट का जो प्रोसेस है वो गाय पर आधारित है। तो फिर हमें ये समझ में आया कि रिप्लेनिशमेंट इज पॉसिबल। हम जो हमारा अप्रोच है, जैसे अगर आप भी स्कूल में वेस्टर्न साइंस ही पढ़े हैं, हम भी स्कूल में वेस्टर्न साइंस ही पढ़े हैं, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? वाटर इज H2O, सॉइल इज डर्ट, एयर इज मिक्स ऑफ गैसेस। मतलब तीनों के तीनों डेड इनर्ट सब्सटेंस हैं, राइट? और हमारा विज्ञान क्या कहता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व बना शरीरा।
तो यदि सॉइल, वाटर, एयर आर द थ्री की इंग्रेडिएंट्स टू लाइफ, तो दे देमसेल्फ कैन नॉट बी डेड ना। अगर वो एक लिविंग इकोसिस्टम है, एक लिविंग इकोलॉजी है, तो उसके अंदर एक बेसिक प्रॉपर्टी होगी जो किसी भी लिविंग बीइंग में पाई जाती है। हर लिविंग बीइंग में जो बेसिक, अगर आप डिफाइन करना चाहें, सबसे बेसिक दो पैरामीटर्स, तो वो क्या है? एक तो उसमें होगा इंटेलिजेंस। आप मच्छर को भी मारने जाओगे तो ना उड़ जाता है वो, ट्रू। राइट? तो मच्छर में भी एक इंटेलिजेंस है ना, ठीक है। और दूसरा होता है सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी, जील फॉर लाइफ, ठीक है। तो जैसे मेरे हाथ में कट लग गया, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बैंडेड नहीं लगाऊंगा तो भरेगा नहीं। सेल्फ हीलिंग इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लाइफ फॉर्म। वो ट्रू। अपने आप को अमेंड, अपने आप को करेक्ट करता रहेगा। तो यानी कि वाटर बॉडीज भी अपने आप को करेक्ट करती रहेंगी। देयर इज अ नेचुरल डाइजेशन मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट। अभी ये जो पैंडेमिक का ग्लोबल लॉकडाउन लगा, ऑल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स, एवरीबॉडी रिपोर्टेड के नदियां साफ होने लग गई हैं, ट्रू। हवा साफ होने लग गई है, एयर पोल्यूशन कम हो गया, वाटर पोल्यूशन कम हो गया। तो कैसे हुआ? सब लोग तो लॉकडाउन में थे। हमने जो अपना पोल्यूशन लोड है, हमारा जो इंटरवेंशन है, उसको हमने कम किया। इट फेल विद इन द नेचुरल डाइजेशन कैपेसिटी, और वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, राइट? सो रिवर स्टार्टेड बिकमिंग क्लीनर, एयर स्टार्टेड बिकमिंग क्लीनर, राइट? सो एक नेचुरल डाइजेशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। आप लॉजिकली कहीं भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, राइट? तो न्यूट्रिएंट ओवरलोड जो है, व्हेन वी व्हाट वी कॉल एज पोल्यूशन इन वाटर या पोल्यूशन इन एयर, उसको इरेडिकेट करने का एक नेचुरल प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वी जस्ट हैव टू डेवलप आर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल सिस्टम। Wow. That is precisely what we have done. So what was the connection? You said you toss the coin. You coined the terminology of cowonomics. So ये cowonomics and ये जो water body reviving, what is the connection? ये मतलब connection क्या है दोनों में के बीच में? So, cowonomics is the technology deeply rooted in Vedic science for resurrection of native ecology in soil, water, and air through their conjunction point, which are the natural water bodies, like lakes and ponds, rivers and rivulet, canals, drains, check dams, dam reservoir. मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हर लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी में सेम है। नीचे सॉइल है, फिर वाटर है, फिर एयर है। True. ये कॉन्फ़िगरेशन जहां पे मेंटेन्ड है, वहां पे एक नेटिव इकोलॉजी एग्जिस्ट करती है जिसको रिसर्ट किया जा सकता है। वो डोमेंसी में चली गई है ओनली बिकॉज द पोल्यूशन लोड is way beyond the natural digestion capacity. So we developed this technology, which is divided into three phases: resurrection, restoration, and rejuvenation. जिसमें हम इन सिटू कंडीशन में किसी भी वाटर बॉडी को यथावत स्थिति में उसका उपचार करते हैं। Wow. मतलब जो So इनलेट्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे, wow. उसको स्टॉप या डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। So आपका ये जो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, how that has become helped you your approach in this environmental challenges and कैसे वो आपको हेल्पफुल रहा? ओके, जो हमारा आईटी का बैकग्राउंड है, यस। ओके, आईटी के बैकग्राउंड ने हमको दो तरीके से मदद की। पहली मदद तो ये है कि देखिए, जो हमारा वैदिक साइंस है, दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबल रिपोजिटरी और नॉलेज बैंक ऑन लाइफ साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस, राइट? लेकिन हमने कोई मेथड्स और प्रोटोकॉल्स डेवलप नहीं किए टू डू द इम्पैक्ट मेजरमेंट। Impact measurement is very now kind of a subject, right? पहले we were living absolutely in harmony with nature. हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही सस्टेनेबल था, तो कोई पोल्यूशन ना हम करते थे, ना हमें कोई इस तरह की समस्या आती थी। लेकिन आज की डेट में जो है, हमें अगर मान लीजिए हमने कोई एक वाटर बॉडी को रिजुविनेट किया, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। देन ओनली पीपल विल बिलीव ऑन यू।
राइट? True. तो इम्पैक्ट मेजरमेंट के जितने भी टूल्स हैं वो सब के सब मॉडर्न साइंस ने हमको दिए हैं. So what we are doing is actually blend of modern science with the Vedic science. वैदिक साइंस से हम इंटरवेंशन करते हैं, मॉनिटरिंग जो है वो हम मॉडर्न साइंस से करते हैं. सो Wow. आईटी का जो बैकग्राउंड है उसका बेनिफिट ये हुआ कि आप मान लीजिए अहमदाबाद में एक वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए हम वो कांकरिया लेक की बात करते हैं. अब मान लीजिए उसके अंदर क्या काम चल रहा है, वाटर क्वालिटी क्या है, एयर क्वालिटी क्या है, या सॉइल क्वालिटी क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना हो रहा है. मान लीजिए वहां के सांसद जो हैं वो लेट अस सपोज अमित शाह जी हैं, ही इज सिटिंग इन दिल्ली. नाउ ही वांट्स टू नो के डेली बेसिस पे चल क्या रहा है. So we can build that network के कांकरिया लेक का सॉइल वाटर एयर क्वालिटी ग्राउंड वाटर रिचार्ज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन is available on his screen sitting in Delhi at any point in time 24/7. Wow. So यहाँ पे हमारा आईटी बीच में आता है, राइट? सो वन इज इम्पैक्ट मेजरमेंट एंड कनेक्टिविटी. सेकेंड इज हमने आईटी इंडस्ट्री में जो इतने साल काम किया, व्हाट वी वर डूइंग वाज कि जो मल्टीनेशनल्स हैं जो कि अभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं या हैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे, उनको नेशनल स्केल पे कैसे पहुंचाना, राइट? सो वी वर वर्किंग ऑन द पार्टनर सिस्टम कि बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देते हैं, वो बिजनेस पार्टनर जाके अपने अपने एरिया में बिजनेस करते हैं. अब अगर भारत भर में हमारे पास 2000 पार्टनर हैं तो हम 2000 लोगों के जरिए मार्केट तक पहुंच रहे हैं, राइट? This was the same system that we adopted in Vedic Srijan also. Vedic Srijan essentially is a technology company. We don't execute projects. So हमारा जो go to market strategy है वो purely वही वाला है, 100% partner based approach. So Wow. as of now we have more than 50 partners across the country, and that is how we have done over 70 projects successfully delivered, and as we speak more than 20 projects are ongoing. Wow, that's So great. ये दो So, इनपुट्स हमको आईटी इंडस्ट्री से हमने अडॉप्ट किए. so आपने, you rightly explained, generally people believe that technology and nature are opposite, but you explained it very well from your experience that they are not conflicting, but they are actually complementary to each other. So वो data integration can really be helpful in seeing what exactly you are putting in. आपकी efforts और results क्या है उसको आप measure कर सकते हैं. So that's really good. So, why do you think many environmental solutions fail to scale or sustain in the long term? Sir, I would say it is lack of research. देखिए एक तो डिजाइन डिफेक्ट है जो कि डिवाइन इंटरवेंशन है. प्रॉब्लम क्या है कि द वन हु इज केपेबल ऑफ इन्वेंशन इज नॉट केपेबल ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, जो मार्केट कर सकता है वो इन्वेंट नहीं कर सकता, जो इन्वेंट कर सकता है वो मार्केट नहीं कर सकता. एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो हम बहुत जल्दी में होते हैं. आप नॉर्मली कोई भी स्टार्टअप की अगर बात करेंगे, भारत में आज 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं. तो उनका एक नॉर्मल सेट पैटर्न होता है कि बच्चे कॉलेज के फाइनल ईयर में उनको आइडिया आता है, देन दे गो टू द कॉलेज इंक्यूबेशन सेंटर. वो जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इसी पे चल रहा है कि आइडिएशन इज डन एट द स्टूडेंट लाइफ, then they go out to the incubation, then they look out for funds, and funds एक बार इन्फ्यूज होने के बाद, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, उसके बाद once they get the fund then they start building the MVP, minimum viable product, right? अब इस पूरे प्रोसेस में होता ये है कि इवेंचुअली इफ यू टेक एन इक्विटी फंड, the person who has infused the equity fund will start governing the processes, क्योंकि ये बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मार्केट कैसे अप्रोच करना है, राइट? इवेंचुअली द गेनर इज द वीसी और द एंजल फंड, क्योंकि सारा कंपनी को वही कंट्रोल कर रहा होता है. देन ही विल सेल इट आउट एंड मेक मनी, एंड थोड़ा सा कुछ पैसा फाउंडर्स को भी मिल जाता है.
या फिर दूसरे जो बड़े स्मार्ट टाइप के जो फाउंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अभी आपको एक 1% पे 1 करोड़ रुपए दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए लगा दिया मार्केटिंग में, फिर मार्केटिंग को ग्रो कर लिया, फिर दूसरे बंदे को दे दिया 10 करोड़ में 1%, तो वैल्यूएशन 100 टाइम्स बढ़ गई, राइट? सो इन दिस इंटायर प्रोसेस द प्रोडक्ट बिकम्स द कंपनी इटसेल्फ। हम लोगों का बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम है, बिकॉज वी वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोफेशनल्स। हमने बोला कि यार हम अपने पैसे से रिसर्च कर रहे हैं, तो 10 साल तक हम रिसर्च ही करते चले गए। अब ये रिसर्च में हुआ ये क्योंकि हम वी वर नॉट इन अ हरी कि हमको क्या करना है, कोई टाइमलाइन हमने डिफाइन ही नहीं कर रखी थी। तो हमने 5 साल तक तबीयत से रिसर्च किया, फिर हमको ये समझ में आया कि नहीं यार, वी हैव समथिंग सब्सटेंशियल इन हैंड, राइट? एंड all through the research there was no agenda to make it a profession, that was just a passion. हम पैशनेटली रिसर्च कर रहे थे, राइट? तो अब हुआ ये कि हमारी जो रिसर्च थी वो काफी इन डेप्थ हो गई। नॉर्मली क्या होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए भी रिसर्च कर रहे होते हैं, एक टाइमलाइन होती है कि यार इतने दिन में थीसिस लिख के खत्म करना है। तो वो हरिडनेस नहीं थी रिसर्च में, राइट? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सोलर इज सपोज टू बी अ वेरी ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट? पूरा रिसर्च इसके ऊपर किया गया कि नहीं यार, जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करके जो एनर्जी जनरेट कर रहे हो उसके अंदर जो हमारा जीएचजी एमिशन है वो बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, सो लेट अस वर्क ऑन सम ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट इज दैट ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी? सोलर, राइट? अब सोलर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो सोलर इज नॉट दैट ग्रीन बिकॉज सोलर सेल बनाने में भी आपको काफी सारे मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि आप अगेन माइनिंग करके निकालोगे, राइट? दूसरा, जब आपने सोलर सेल बना भी लिया उसके बाद भी सोलर सेल, फोटोवोल्टेइक सेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज ओनली सपोज टू एब्जॉर्ब द फोटॉन्स। व्हाट हैपेंस टू द इंफ्रारेड? So infrared is the heat carrying wave of sunlight. उसको अगर फोटोवोल्टेइक सेल कैप्चर करेगा तो वो बस्ट कर जाएगा, इतनी हीट हो जाएगी उसमें। तो उसको हर सोलर सेल जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट? अब जस्ट इमेजिन अगर ये सनलाइट धरती पे गिरी होती तो मिट्टी वुड हैव एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड, पानी पे गिरी होती तो वाटर वुड हैव एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड। फोटोवोल्टेइक सेल पे गिर रही है तो इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, एंड वेयर इज इट गोइंग? इट इज देयर इन द एटमॉस्फेयर। सो हमने सोलर का टेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस किया? सो दैट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हम कम कर सकें, और जो हम लार्ज स्केल सोलर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें हम जो लोकल टेम्परेचर है उसको 5 to 6 डिग्रीज तक बढ़ा देते हैं ऑन डे 1। तो Yes, क्या I've हम heard प्रॉब्लम that. को सॉल्व कर रहे हैं? इनफैक्ट आई आल्सो हर्ड दैट कि जो सोलर जो प्लांट्स लगे होते हैं वो जमीन भी मतलब आफ्टर फ्यू इयर्स मतलब इट बिकम्स अ डेड लैंड, यू नो, मतलब एकदम बंजर जमीन हो जाती है। इज दैट ट्रू? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। सी, वो जो आप हीट जनरेट कर रहे हैं 5 to 6 डिग्रीज, वहां पे बहुत सारी जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है इट कैन नॉट सस्टेन दैट काइंड ऑफ अ हीट, तो प्रॉब्लम होती है, वो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होते हैं, ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रीन। क्या वो ग्रीन है? नहीं है। इन्वायरमेंट को लॉस कर रहा है? हाँ, कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल। सो द आंसर इज अगेन वाटर। कोई भी वाटर बॉडी इन अ हेल्दी कंडीशन विल एब्जॉर्ब 6 to 8 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द लोकल विसिनिटी। तो इधर आप 5 से 6 डिग्री बढ़ा रहे हो, उधर आप 6 से 8 डिग्री डाउन कर रहे हैं। तो हर सोलर प्लांट के आसपास अगर एक कंसेमरेट साइज की वाटर बॉडी क्रिएट हो जाए तो सोलर प्लांट विल बिकम सस्टेनेबल। सो सो हाउ डू यू गेट ऑल दीज आइडियाज? ओनली व्हेन यू डू एन इन डेप्थ रिसर्च, राइट? सेम गोज ट्रू विथ हाइड्रो पावर। हम बोलते हैं हाइड्रो पावर में क्या है, हमने पानी स्टोर करके उसको रिलीज तो किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टरबाइन घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन आपने पानी जहां पे रोका हुआ है, क्या नेचुरली वाटर इज सपोज टू बी हेल्ड देयर? एक टिहरी डैम जैसा जो डैम है, अबाउट 2000 गांव उसमें पानी के नीचे डूब गए, तो नया टिहरी बना, वहां पे लोगों को माइग्रेट किया गया। अभी जो 2000 गांव डूबे हैं, दे वर सपोज टू बी अबव वाटर ना,
वो दो पहाड़ों के बीच में पानी रोकने की जगह तो है नहीं। तो जब आपने वो सारी जमीन को पानी के नीचे कर दिया, तो वहां जो पेड़ पौधे हैं उनका डिकम्पोजिशन तो होगा। वो क्या ओवरनाइट फॉसिल फ्यूल तो बन नहीं जाएंगे। अब उनका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब कुछ रिलीज होगा। और ये रिलीज हो हाँ, रहा है पानी के नीचे। पानी तो के कहाँ अंदर। बोल रहा है? पानी के अंदर। अब जब आप डैम तो रिजर्वायर से पानी निकालेंगे तो इट विल बी फुल ऑफ कार्बन। सो इतने बड़े रिजर्वर्स का भी योर टेक्नोलॉजी कैन रिवाइव। यस, वी आर जस्ट रिस्टोरिंग द नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचर तो हमारे साथ में है ही ना पहले से। ट्रू 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 ट्रू। So what are some common mistakes, generally government, yeah, industries, yeah, communities make while addressing water or environmental issues? Like you gave the example of this water bodies, artificially created water bodies, even solar panels, hydraulic power. So ये even question is coming in my mind that हम घर के टेरेस के ऊपर सोलर लगाते तो वो 5-6 डिग्री का जो हीट इफेक्ट होगा वो घर के ऊपर भी, घर की सीलिंग के ऊपर भी आएगा ना। सो नहीं नहीं, दैट इज टू स्मॉल सर। वो एक मेजर इम्पैक्ट करने के लिए दैट इज टू स्मॉल, जो रूफटॉप सोलर है। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज स्केल सोलर डिप्लॉयमेंट। रूफटॉप सोलर तो बहुत ही छोटा सा प्लांट है, वो तो आपको क्या हार्डली 1 kVA का तो आपको पावर जनरेट कर रहा है। दैट इज नॉट सब्सटेंशियल इनफ टू इम्पैक्ट द कम्युनिटी एनवायरमेंट। अराउंड। वो सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो ये है कि आप नेचर को समझ ही नहीं रहे हो। आप जिस पे डिपेंड करते हो, मतलब इट इज लाइक आप जिस डाल पे बैठे हो ना उसी को काट रहे हो, राइट? बिकॉज सी, विदाउट सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन रेस, इट इज फॉर ऑल द रेसेस ऑन द प्लेनेट, ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। तो अभी अगर आप भारत को देखो तो भारत इज द ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूस सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑन द प्लेनेट। इट इज द ओनली वन, राइट? तो अगर हम अपना डॉक्यूमेंट्री और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे तो हमारे पास मिनिमम 25,000 ईयर्स का कंटिन्यूस डेटा है, रिकॉर्ड है। ठीक है। तो अगर हम इतने लंबे समय से जी रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है ना कि हमने कोड ऑफ सस्टेनेबिलिटी तो कहीं ना कहीं क्रैक किया होगा। ट्रू। अदरवाइज हम कंटिन्यूस सिविलाइजेशन नहीं हो सकते थे। देखो आप मेसोपोटामिया, इजिप्ट, बेबीलोनिया, मायन सिविलाइजेशन, राइट, पेरू में माचू पिचू, ऑल दी सिविलाइजेशन केम एंड वेंट अवे, बट वी सस्टेन्ड। मतलब हमने कोड ऑफ सस्टेनेबिलिटी तो क्रैक किया होगा। ठीक है। अब ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि पिछले अबाउट 2,500 साल में इंडिया हैज बीन द मोस्ट इन्वेडेड लैंड इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, राइट? राइट। अगर सबसे ज्यादा इन्वेजन हमारे यहाँ हुए हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ा होगा हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे ट्रेडिशंस पे, राइट? ट्रू। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि इंडिया इज द ओनली लैंड वेयर इन्वेडर्स डिसाइडेड टू स्टे बैक along with the natives। देखिए बाकी जहां पे भी इन्वेडर्स गए उन्होंने जो नेटिव रेसिडेंट्स थे, जो नेटिव पीपल थे, उनको पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया, राइट? सो इन्वेडर्स एक्चुअली एडजस्टेड along with the native population। दिस इज अनदर फैक्ट। अच्छा, अब जब आप साथ में रहेंगे आप अपना कल्चर भी तो लेके आएंगे, तो आप हमारे कल्चर को भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? ट्रू। तो वो इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि सिस्टमैटिकली हमको हमारे रूट से कट किया गया, राइट? अब मुगलों तक तो सब कुछ ठीक था बिकॉज दे वर वांटिंग टू एडजस्ट देमसेल्व्स इनटू आवर सोसाइटी विथ टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बट 1857 का जो लड़ाई हुआ था ना, उसने एक मेजर मेजर इम्पैक्ट किया इन आवर हिस्ट्री। 1857 के लड़ाई में उस समय मतलब बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुआ था। तो ऑलरेडी अंग्रेजों को 100 साल हो चुके थे भारत को रूल करते हुए। सो फॉर देम इट वाज मेजर मेजर शॉक कि यार इतना बड़ा रिवोल्ट 100 साल रूल करने के बाद भी ये लोग कैसे कर सकते हैं।
right? So there is a complete speech of Lord Macaulay in British Parliament. वो डॉक्यूमेंट है, इट इज अवेलेबल, एक वो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो उसमें एक डॉक्टर धर्मपाल ने एक बहुत बढ़िया बुक भी लिखी है उसके ऊपर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये बताया कि यार अगर ये रेस को रूल करना है, बिकॉज दे आर वे मोर इंटेलिजेंट देन अस, दे आर वे मोर एजुकेटेड देन अस। मतलब 1858 का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेक्चर है लॉर्ड मैकॉले का, वो ये कह रहे हैं कि 87% of Indians are educated, and each one of them have gone through at least 1000 books in their lifetime, compared to the British population wherein there was only 17% education and 99% of them had only read the Holy Bible in their lifetime. उसके अलावा वो कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं है। तो अगर we have to rule over a race which is more intelligent than us, then we have to methodically break them away from their roots. And to make it happen, we have to abolish their education system. That is the point from where the deterioration started happening, to the extent कि आपको जो आपका जो रूट था उससे डिस्कनेक्ट कर दिया गया, एंड दैट इज व्हाई यू सी सो मच ऑफ डिटोरिएशन, दैट जो आज का जो बच्चा है, आज का जो यूथ है, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर कल्चर। वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है वो मालूम ही नहीं है, ठीक है। एंड दे कॉइंड दिस वंडरफुल टर्म, जैसे हमने काउनॉमिक्स बनाया ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म बनाया, मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मिथ्स। महाभारत और रामायण हमारे टेक्स्ट में ना वो वेद में आते हैं, ना उपनिषद में आते हैं, ना पुराण में, तो वो किस में आते हैं? वो आते हैं इतिहास में। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। द टर्म हिस्ट्री इज एक्चुअली डिराइव्ड आउट ऑफ इतिहास, राइट? तो हमें हमारे इतिहास से ही कट कर दिया गया ये बोल के कि ये तो मिथोलॉजी है, राइट? एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग इनटू इट आल्सो, राइट? देयर वाज वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ सम बॉलीवुड स्टार जो कि टीवी पे इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि वी शुड बी थैंकफुल टू ब्रिटिशर्स that they created us into one country, because at the time of independence there were 526 princely states. तो भाई वास्को डिगामा कहाँ गोवा ढूंढता हुआ आया था क्या? वो भारत ही आ रहा था ना, भारत ही आ रहा था, ट्रू। तो भारत was the land of abundance, राइट? अच्छा, एक और बड़ा फैक्ट है कि आप ये देखिए कि भारत सोने की चिड़िया है, राइट? ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत सोने की चिड़िया बना कैसे? We have only 2% of the global gold mines, but still we were the only country which was called सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। तो इतना सोना आया कहां से, राइट? ये जो फैक्ट है ना, जो हिस्टोरिक फैक्ट है, इसको मोदी जी ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, समझा, और तब जाके स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया। देखिए भारत, मैंने आपको बताया, इट वाज द मोस्ट इन्वेडेड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके बाद भी सोने की चिड़िया था। तो ऐसा हुआ कैसे? ऐसा होता इस वजह से था बिकॉज जो इकोसिस्टम हमारा बना हुआ था, देखिए हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों को मोनेटाइज नहीं किया था, इट वाज फ्री फॉर ऑल। अब जब एजुकेशन और हेल्थ केयर मोनेटाइज नहीं है, मतलब एवरीबडी वाज एजुकेटेड, नंबर वन, एंड एवरीबडी वाज केयर फ्री कि यार कल को बीमार पड़ूंगा तो क्या होगा। मुफ्त का इलाज हर गुरुकुल में हो रहा था। अब आपने, आज भी आप अगर रिमोट गांव में अगर कहीं जाएं, राइट, आपको भूख लगी है, आप कोई भी दरवाजा खटखटा दीजिए कि यार मुझे भूख लगी है, लोग आपको खाना खिला देंगे, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, प्यार से। यस, वो भी प्यार से। स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट? अब ये आज की डेट में, जबकि मैन इज अ कमर्शियल एनिमल, तो आप सोचिए आज से 2000 साल पहले क्या होगा। तो ये जो बंदा है, इसको खाने की चिंता नहीं करनी है, कहीं भी मिल जाएगा। बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, बिकॉज मुफ्त इलाज है। बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी है, राइट? तो दिस वाज अ केयर फ्री मैन हु वाज वेरी वेल एजुकेटेड। तो वो खाली बैठ के करेगा क्या?
इनोवेट ही करेगा, इन्वेंट ही करेगा। अब उसने जो भी इनोवेट या इन्वेंट किया, ये कहाँ कर रहा है? ये गांव में कर रहा है। गांव से वो शहर जो थे वो हमारे मंडी थे, वो शहर में आता था, शहर में बिक जाता था। शहर से वो जाता था पोर्ट सिटी में, बंदरगाह पे, और वहां से एक्सपोर्ट हो जाता था। सोना वॉज द एक्सचेंज करेंसी, बदले में सोना आ जाता था। अब जब भी इन्वेजन होता था तो इन्वेजन कहाँ होता था? कोई भी इन्वेडर आता था तो शहर पे ही अटैक करता था। शहर पे अटैक किया, सोना लूट के ले गया। जो हमारा सोमनाथ मंदिर है वो मेरे ख्याल से 14-15 बार तोड़ा गया, राइट? ट्रू, 17 बन 17 बार प्रिसाइजली 17 बार तोड़ा गया, किया। वो फिर से बन जाता था, बिकॉज पीपल वर रिच, पीपल वर एबल टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, ट्रू। राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इन्वेडर्स आते थे, जो मार्केट था उसको लूट के जाते थे, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट थे वो सेफ थे। गांव गांव में इनोवेशन हो रहा है, गांव का इनोवेशन शहर पहुंच रहा है, बदले में सोना आ जा रहा है। तो भारत कंटिन्यू टू रिमेन सोने की चिड़िया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देयर वाज एन अमेरिकन हिस्टोरियन जिसका ये कहना है कि बिफोर इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया, इंडिया वाज कमांडिंग 75% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। वाओ, और जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ, दैट टाइम आल्सो इंडिया कंट्रीब्यूटेड 33% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो दैट्स अमेजिंग। we were contributing more than India and China of today put together combined. उससे ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन था टिल 1757 इन द ग्लोबल जीडीपी, राइट? तो सोने की चिड़िया नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? ट्रू। अब आप आज की डेट में देखिए, मोदी जी ने जो ये इम्प्लीमेंट किया स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनोवेशन कहाँ हो रहा है? टीयर 3 सिटीज में हो रहा है, टीयर 4 सिटीज में हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो दैट इज कोलैप्सिंग, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो जबरदस्त बनी हुई है। क्यों? बिकॉज द कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से आ रहा है। वहां पे जब इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगी तो आपकी जो मेट्रोज की इकोनॉमी है उसमें कोई डेवलपमेंट हो के ना हो, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, प्रैक्टिकल वेरी है। सो हमें सिर्फ अपने रूट्स पे वापस जाना है। वी कैन एक्चुअली give the right path, the right way forward, which is sustainable for the entire planet, for all life forms. ठीक है? और हमारी भाषा भी देखिए ना कितनी वैज्ञानिक है। हम एक इंसान जो है वो उर्दू का शब्द है ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। वी आर जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द नेचर। ठीक है? हमारे माध्यम से प्रकृति अपने आप को व्यक्त कर रही है, इसलिए हर आदमी एक व्यक्ति है। वाओ, सो दैट इज दैट इज देयर इनटू आवर सिस्टम। हमें सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है। हमें सिर्फ उसको, ये जो अप्रोच लेते हैं ना लोग कि नहीं यार ये तो दर्शन की बात कर रहा है, ये तो वेद पुराण उपनिषद की बात है, ये दकियानुसी बात है। ये दकियानुसी नहीं है, दीज आर वेरी साइंटिफिक। और वी आर अ लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स। हम लोग साइंस को नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ट्रांसफर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब जैसे आपने दादी नानी की कहानी सुनी होगी कि एक दक्ष प्रजापति थे, उनकी 27 बेटियां थी। वो 27 बेटियों को उन्होंने शादी कर दी चंद्रमा से, और उसके बाद फिर 26 बेटियों ने आके उनको कंप्लेंट किया कि ये तो ज्यादातर रोहिणी के साथ ही रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि भाई तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम मर जाओगे। और उसके बाद वो भागे भागे गए शिव जी के पास। शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको श्राप तो कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सिर पे तुमको धारण करता हूँ, तो जैसे जैसे तुम्हारा क्षय होगा वैसे वैसे ही तुम वापस भी जिंदा हो जाओगे, राइट? अब ये स्टोरी दादी नानी सुनाती है। अब इसको जरा आप लॉजिकली सोच के देखिए तो आप अपना सिर पीट लेंगे। पहली बात, एक आदमी की 27 बेटियां, वो 27 की 27 की शादी एक ही आदमी से कर दे, क्वाइट इलॉजिकल। इलॉजिकल। उसके बाद उस आदमी को वो श्राप दे दे कि भाई तू मर जा, तो अपनी 27 बेटियों को विधवा कर दे। अगेन क्वाइट इलॉजिकल, राइट? उसके बाद वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी बोलते हैं श्राप तो मैं नहीं खत्म कर सकता, लेकिन मैं अपने सिर पे धारण कर लेता हूँ, तो तुम जैसे जैसे मरोगे वैसे वैसे जिंदा हो जाओगे।
Now, in this entire process, what we have transferred to the next generation in this story is the celestial science. रोज चंद्रमा घटेगा बढ़ेगा, उसको देख के आप अम्यूज ना हो तो आपको ये पूरा साइंस समझाया गया। कैसे समझाया गया? जो नाइट स्काई है दैट इज 360 डिग्रीज, उसमें 27 नक्षत्र बांट दीजिए, राइट? तो 27 नक्षत्रों में 27 बेटियां, उनकी सबकी शादी कर दी चंद्रमा से, और चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमेगा, सबसे ज्यादा टाइम रोहिणी नक्षत्र में रहता है, तो बाकी 26 ने जाके कंप्लेंट किया, राइट? अब आपको ये समझाया गया कि वो उसका क्षय होगा 15 दिन, तो जो आपका कृष्ण पक्ष है फिर शुक्ल पक्ष है वो पूर्णिमा में जाएगा, राइट? तो ये पूरा साइंस हमने एक बच्चों की स्टोरी के माध्यम से समझा दिया। अब बच्चे इसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मूवमेंट ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी इन फॉर्म ऑफ अ वंडरफुल स्टोरी। तो ये सारा साइंस कोडेड है, हमको सिर्फ डिकोड करने की जरूरत है, राइट? अभी ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको सैटर्न के रिंग कब समझ में आए, उसको जुपिटर का रिवोल्यूशन कब समझ में आया, जस्ट अभी 200 300 400 साल के पहले की बात है। उससे पहले उनको नहीं मालूम था, वो धरती को फ्लैट मानते थे, ठीक है? हमारे वरा अवतार धरती को निकाल के लाए थे, उस समय भी वो स्फेरिकल थी, राइट? ट्रू। जुपिटर का जो रिवोल्यूशन है उसके बेसिस पे कुंभ होता है। कुंभ का जो डिस्क्रिप्शन है वो रामायण में भी है, राइट? अभी एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं अपने नीलेश ओक जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सेटल्ड इन यूएस। ही इज रिटन अ वंडरफुल बुक ऑन डेटिंग रामायण एंड महाभारत। उन्होंने सारी जो नक्षत्रों की जो डिस्क्रिप्शन है रामायण और महाभारत में उसको निकाला, उसको प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर पे प्लान किया, और उनको डेट निकल के आई कि भाई ये 7000 बीसी में महाभारत हुई थी एंड 14,000 बीसी में रामायण हुई थी। फिर उन्होंने 17 अलग अलग स्ट्रीम ऑफ साइंस से उस डेट को दोबारा मैच करके देखा कि ये जो इवेंट्स हैं इनका अलग अलग स्ट्रीम ऑफ साइंस में क्या रिकॉर्ड मिलता है, एंड एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड द सेम डेट। तो अगर हम उस उनकी डेट्स को सही मान के चलते हैं तो 14,000 बीसी में हमको ये मालूम था कि जुपिटर का रिवोल्यूशन कितने साल में कंप्लीट होता है, राइट? सो आवर साइंस is existing for last 25,000 years, so it is very well matured and we understood everything about nature. So that is why when I say कि हमारा जो scriptures है that is the biggest possible repository on life sciences and natural sciences. So that is substantiated with all these facts. We just need to go back and revisit our roots. You rightly said, but मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि हमको पेटेंटेड चीजों पे ज्यादा भरोसा होता है इंस्टेड ऑफ आर वैदिक साइंस एंड आर जो ग्रंथ्स एंड पुराण है ये सब पे नहीं है, बट जो पेटेंट लगा है उस पे हमको ज्यादा बिलीफ एंड ट्रस्ट होता है। दैट्स अ ट्रू रियलिटी, ट्रेजेडी है। सो कैन यू शेयर अ रियल लाइफ एग्जांपल वेयर your environmental restoration created a positive social or economical impact? सर हमने ना एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया, राइट? उसमें हम क्या करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट वी सेंड अ रिसर्च टीम विच डज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बेसलाइन सर्वे करते हैं कि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सॉयल, एयर क्वालिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द वाटर बॉडी, एवियन बायोडाइवर्सिटी, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, बेथीमेट्री के कितना पानी है, कितना स्लज है, एक्चुअल डेप्थ क्या है, अंडरग्राउंड एक्वीफर कितने डेप्थ पे है, ये सारा सर्वे पहले होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड द बेसलाइन सर्वे फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद हम इंटरवेंशन चालू करते हैं। ड्यूरिंग द इंटरवेंशन जो एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री टीम जाती है, वो जो भी प्रोजेक्ट है उसके आसपास के लोगों का फीडबैक लेती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है कि आपको ये वाटर बॉडी से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लोग
अलग अलग फीडबैक देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या बहुत मच्छर हैं, या बीमारियां फैल रही हैं, या कोई डूब के मर जाता है इसमें, या वीड्स बहुत आती हैं, या बरसात के टाइम पे ओवरफ्लो करते हैं। तो लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। That is video recorded, so that it acts as a documentary evidence कि ये प्रॉब्लम थी बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डिजिटल हैंडहेल्ड मीटर्स होते हैं एग्जीक्यूशन टीम के पास। दे कैप्चर 18 डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर ऑन अ डेली बेसिस, जब भी वो ट्रीटमेंट डोजिंग करेंगे, एंड दे मेंटेन अ लॉग बुक एट साइट। उसके बाद हर 15 दिन में वाटर सैंपल्स आर लिफ्टेड एंड दे आर सेंट टू NABL accredited लैब फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। उसके बाद ऑन जो जब आपका फेज 2 चालू होता है, देन वी ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग द सैंपल्स ऑफ स्लज, जो नीचे स्लज डिपॉजिट होता है। उसके बाद वी ऑल्सो गेट another third party research done, which is the socio-economic impact assessment। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट वाली जो टीम जाती है वो पहले गवर्नमेंट का डेटा लेती है कि बिफोर द प्रोजेक्ट यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस, या वाटर बोर्न डिजीजेस, या एयर पोल्यूशन बोर्न डिजीजेस, इनके कितने केसेस रिकॉर्ड किए जाते थे, रिपोर्ट किए जाते थे। और जब ये इंटरवेंशन चालू हुआ है उसके बाद नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं या घटे हैं। फिर वो लोगों से भी बात करते हैं कि भाई आपका क्या फीडबैक है। उस दोनों तरह के डेटा को पहले मैच किया जाता है, देन एक रिपोर्ट इज जनरेटेड कि ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स, वेल्थ इंडेक्स, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स क्या है। So this is another research which is done, which is specific to socio-economic impact. Now, usually कोई भी आदमी जब environmental project करता है तो socio-economic impact study करवाता ही नहीं है। We are getting that done as a part of our standard operation procedure. उसके बाद we also talk to a third party agency for conducting a biodiversity impact assessment, जो कि GIS, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा के जरिए किया जाता है। उसके लिए आपको फिजिकली साइट पे नहीं जाना पड़ता है, बट थ्रू दिस अवेलेबल डेटा फ्रॉम सैटेलाइट एंड GIS एंड रिमोट सेंसिंग आप ये स्टडी कंडक्ट करते हैं। So all these kind of studies are conducted, then only the impact measurement is done. So fortunately, for all our projects, wherever we have got these kind of specific studies conducted, there has been report that लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लोगों की सेविंग्स भी बढ़ी है, लोग ज़्यादा हेल्दी भी हैं बिकॉज बीमार कम पड़ते हैं, एंड लोग ज़्यादा हैप्पी भी हैं बिकॉज हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं। तो इनकम भी बढ़ रही है, सेविंग भी बढ़ रही है और हेल्दी भी है। So that is what is the socio-economic impact that gets created. सो इनिशियली आपने बताया था कि यू आर नॉट स्केलिंग अप इट विथ योर ओन ऑन योर ओन, आपने लोकल पार्टनर्स हायर किए हुए टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। सो उसका क्या रीजन है? लोग तो मतलब लोगों को खुद का बैंडविड्थ क्रिएट करना होता है, खुद का सिस्टम क्रिएट करना होता है। सो व्हाई यू आर आउटसोर्सिंग इट टू योर लोकल पार्टनर्स? Sir, it's not outsourcing. We are getting more number of people on our side. We are making partners, right? तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टेंडर है, so गवर्नमेंट टेंडर में if the tender is asking about overall impact के वाटर, एयर, सॉइल तीनों अच्छे होने चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए, फ्लड मिटिगेशन होना चाहिए, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन होना चाहिए। तो अब इतना बड़ा कैनवस हो जाता है कि लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वर्ल्ड ओवर जो आदमी पानी में काम करता है उसको सॉइल का नहीं पता, जो सॉइल में काम करता है उसको एयर का नहीं पता, जो एयर में काम करता है उसको ग्राउंड वाटर का नहीं पता, अगर कोई ग्राउंड वाटर में काम कर रहा है तो उसको बायोडाइवर्सिटी का नहीं पता, राइट? तो जब भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाता है तो लोगों के पास ऑप्शंस मिलते नहीं है, तो वो नेट पे जाके सर्च करते हैं कि भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है। सो वी आर दैट टेक्नोलॉजी, देन दीज पार्टनर्स अप्रोच अस। तो हम उनको ये बताते हैं, बॉस देखो ऐसा तुमने कभी सुना तो है नहीं, नाउ इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट यू नीड टू बी ट्रेन्ड।
सो वो हमको पार्टनरशिप फी पे करते हैं, हम उनके स्टाफ को ट्रेन करते हैं, देन वी ऑथराइज देम टू कोट बिड एंड नेगोशिएट यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी, सो दे पार्टिसिपेट इन टेंडर, they will pick up the project, they only will execute the project. अब जो आदमी हमारे साथ एक बार काम करके he has been profitable, तो वो तो और काम करता रहेगा ना. So that is how there are more number of people coming on our side, because see we are sailing against the tide. अभी अगर आप established norms देखेंगे तो established norms क्या है? To create an STP, बायोरिमीडिएशन, फाइटोरिमीडिएशन, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, डीवैट्स, ये सारी चीजें हैं जो कि अमूमन की जाती हैं. अब जैसे आप गवर्नमेंट की देखिए ना, भारत सरकार इज स्पेंडिंग $240 बिलियन एनुअली ओनली इन वाटर एंड वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. तो पैसा तो जा रहा है. अब पैसा जा कहाँ रहा है? वाटर बॉडी रिजुविनेशन के नाम पे अगर आप लास्ट माइल पे जाके देखेंगे तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एक पंप बिठाते और सारा पानी बाहर फेंक देते, राइट. कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन, और सारा पानी बाहर पंप आउट कर दिया जो कि वेस्ट वाटर में चला गया, फिर जेसीबी घुसा के पूरा गड्ढा किया, फिर बोरवेल का पानी निकाल के वापस से भर देते हैं. अब आप सोचिए 1 एकड़ का एक तालाब जिसकी डेप्थ अबाउट 10-12 फुट हो, उसके अंदर 1 करोड़ लीटर पानी आता है. अब पहले आपने 1 करोड़ लीटर पानी फेंक दिया, फिर ग्राउंड वाटर निकाल के वापस से भर दिया. आप कर रहे हो वाटर कंजर्वेशन एंड यू वेस्टेड 2 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर. तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जाके ये हो जाता है. सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल कि यार अपने नेचुरल रिसोर्सेज को समझो तो सही. आपके घर में एक कुत्ता है, उसको अगर वो बीमार पड़ गया तो आप वेट के पास जाते हो ना, आदमी के डॉक्टर के पास नहीं जाते. वहां आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए. कुत्ता भी तो पानी पिएगा, पानी के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए. पानी के ऊपर काम कौन कर रहा है? सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियर को बेचारे को पढ़ाया ही गया है कि जब तक तूने स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया तब तक तूने कुछ किया ही नहीं, राइट. दे डोंट बिलीव इन द पावर ऑफ नेचर टू हील इटसेल्फ, एंड दैट इज वेयर वी आर लैकिंग. हम वाटर बॉडी को सिर्फ पूल और रिजर्वायर ऑफ वाटर मान के चल रहे हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग अ वाटर बॉडी एज अ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर. दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, एंड दिस इज व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड. अब ये करेक्ट करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए ना, जो ये जाके अपने अपने जगह पे लोगों को समझाए. अभी आपके चैनल के माध्यम से कम 5-6 हजार लोग देखेंगे तो उनको कुछ समझ में तो आएगा कि यार तुम्हारे जलाशय जो है वो तुम्हारे को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हो सकते हैं. Understand the natural resources that you have. That is what the agenda is. That is why we have this partnership model. More and more people going out in the market and talking about it. And talking on merits. Result deliver कर रहे हैं हम. ये नहीं है कि आप मेरे पे विश्वास कर लो. It's not like that. Data speaks for itself. मोटा मोटा अगर आप बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसे एज इन लेमैन्स लैंग्वेज कैसे काम करता है, सो दैट विल बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरीवन. सर जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमको साइट से डेटा चाहिए होता है बहुत सारा. वो डेटा को हम एनालाइज करते हैं, फिर हम एक मेडिसिन बनाते हैं जो कि 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है. मतलब आम भाषा में बोले तो जड़ी बूटियों का अर्क है. लेकिन कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी है किस प्रोजेक्ट में, ये स्टडी पे डिपेंड करता है, राइट. तो आजू बाजू के 2 तालाब में भी बिल्कुल अलग अलग दवाइयां जा सकती, राइट. तो ये जो लिक्विड कंसंट्रेट मेडिसिन है, इसको हम शिप करते हैं टू द लोकेशन वेयर इट इज अमेलगमेटेड विद फ्रेश वाटर फ्रॉम द सेम एग्रोक्लाइमेटिक जोन, और उसको मिक्स करके सुबह सूर्योदय के टाइम पे वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है. दैट इज द प्रोसेस. अब ये प्रोसेस में 3 फेजेस हैं. फेज 1 इज रिसरक्शन, जिसमें हमारा फोकस वाटर पे रहता है. फेज 2 इज रेस्टोरेशन, जिसमें हमारा फोकस जो सॉइल के माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर रहता है, सो दैट जो स्लज है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाए, जो गाद जमा होती है, एंड सॉइल कैपिलरी लिंक जो है वो वापस से स्टैब्लिश हो जाए. फेज 3 इज रिजुविनेशन, वेरिन अभी जो पहले 2 फेज हैं उसमें हमने जो लिगेसी वेस्ट है उसको पूरे को डिकम्पोज कर दिया. जो थर्ड फेज है उसके अंदर जो डेली इनलेट है उसको डेली डाइजेशन के साथ कैलिब्रेट किया जाता है
कि जितना इनलेट आ रहा है उतना ही डेली बेसिस पे डाइजेशन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एंड वाटर बॉडी विल बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ. दिस इज काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी. दूसरी टेक्नोलॉजी, जब हम काम करने लगे फील्ड में तो हमको नए नए चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए. अब एक चैलेंज ये है कि बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो कि पीक ऑफ समर्स में कंप्लीटली सूख जाती है. तो इन वाटर बॉडीज के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी निकाली, दैट इज कॉल्ड इको लाइनिंग. तो वो पर्टिकुलर रेग्योक्लाइमेटिक जोन में जो भी वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट अवेलेबल इन अबंडेंस है, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, फिर हम एक ऑर्गेनिक वेस्ट की लाइनिंग लगाते हैं, उसके बाद पानी भरना स्टार्ट करते हैं. So that is called eco lining to make water bodies which are vulnerable to drying to make them perennial. That is technology number 2. Technology number 3 is eco dredging. वो water bodies जो कि पूरी भरी रहती हैं, ड्राई नहीं होती हैं, लेकिन उनके नीचे जो स्लज डिपॉजिट है वो मैसिव है. जैसे हमने वाराणसी में एक वाटर बॉडी किया था, उसके अंदर जो स्लज डिपॉजिट, दैट वाज 7 feet ऑफ स्लज. Oh my God. 12.5 एकड़ की वाटर बॉडी में 7 फीट का स्लज था पूरे में. और जब हमने 1 साल ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद जो वाटर लेवल है ऊपर से वो 7 फीट नीचे चला गया, बट इट बिकेम अ पेरिनियल वाटर बॉडी. वो सूखना और फ्लडिंग दोनों बंद हो गई. देन द थर्ड टेक्नोलॉजी, द फोर्थ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव इज कॉल्ड इको ड्रेनर. अब ये सारी वाटर बॉडीज की जो प्रॉब्लम है दैट इज कमिंग वाया ड्रेन्स. तो ड्रेन में ही अगर इंसिटू ट्रीटमेंट हो जाए तो वाटर बॉडी के ऊपर लोड कम पड़ेगा. सो True. दैट इज फॉर इंसिटू ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रेन. अच्छा, जो फिफ्थ टेक्नोलॉजी है हमारी, वो क्लाइमेट टेक और एनवायरमेंट की नहीं है, वो एग्री टेक की टेक्नोलॉजी है. ये नेचुरल माइग्रेशन इस वजह से हुआ क्योंकि हमको भारत में अगर वाटर अबंडेंस क्रिएट करना है तो आप, भारत में अभी करीबन 24,75,000 वाटर बॉडीज हैं, जिसमें से कि 93% रूरल में है. ये वाटर बॉडी सेंसस 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने पब्लिश किया था. अब ये जो वाटर बॉडी जो रूरल एरियाज में, इनकी कंटामिनेशन का की रीजन है एग्रीकल्चर. बिकॉज एग्रीकल्चर में हम भर भर के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज करते हैं. ये सब एग्री रन ऑफ में वाटर बॉडीज में पहुंचता है. तो अगर आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो 80% ऑफ द टोटल वाटर यूजेज ऑफ द कंट्री इज कंज्यूम्ड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. तो अगर इनको ठीक नहीं किया तो आप पानी कितना भी क्रिएट कर लीजिए, वाटर स्कार्सिटी बनी रहेगी. So that is why we ventured into agri-tech to solve the problem of agriculture, horticulture, aquaculture, and animal husbandry या livestock farming. So that is called MAGIC, Medicine for Agricultural Growth and Integrated Crop Conservation. So ये 5 टेक्नोलॉजीज अभी तक हमने इन्वेंट की. सो ये सारी वन टाइम ट्रीटमेंट है या कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है? नहीं सर, जब तक वाटर बॉडी हेल्दी कंडीशन में नहीं आ जाती, तो हमको ये तीनों फेजेस कंप्लीट करने के बाद वाटर बॉडी हेल्दी कंडीशन में आएगी. फेज 1, फेज 2, फेज 3, और इनका जो टाइम पीरियड है इट विल वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कि लीगेसी कंटामिनेशन कितना आ रहा है, वो कंटामिनेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहां पे एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी बची है कि नहीं बची है. ऑल दोस आर द फैक्टर्स विच विल क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर solving the problem. So that is why it is मतलब it will vary from project to project. 12 महीने में हो रहा है कि 36 में हो रहा है कि 24 महीने में हो रहा है. जब हमको preliminary data मिलता है then only we are able to give the exact timeline. So you said about waterpreneur from entrepreneur. So what does this waterpreneurship means to you, and who all can be a waterpreneur with you? Who can be your strategic partner, I can say? तो वाटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज द होल इकोसिस्टम अराउंड वाटर. देखिए, वाटरप्रेन्योर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एक्चुअली वाटर बॉडी रिजुविनेशन में काम करें. वाटरप्रेन्योर्स जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, दे कैन बी लॉयर्स ऑल्सो. अब आपको मालूम ही है कि एनजीटी बना हुआ है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल is the apex court for taking calls on all environment related cases, right? environment related cases अगर आप देखेंगे तो वो स्टार्ट ही वाटर कंटामिनेशन से होते हैं, ठीक है.
अब आपको मालूम होगा एक मैगजीन है वाटर टुडे, देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड वाटर डाइजेस्ट, there is a magazine called Smart Water Magazine in Spain, which has given us an award for globally number 2 author on water. Right? Wow, There is a congratulations. smart. Thank you, sir. There is a Smart Water and Waste World magazine. तो ये इतने सारे publications are dedicated to water sector. So water journalism is yet another sector for waterpreneurs, right? फिर पॉलिसी मेकिंग है। अब जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। आईयूसीएन में देयर इज अ पर्सन हु इज हेडिंग वाटर, राइट। रामसर कन्वेंशन का आपने नाम सुना होगा। जैसे यूएनएफसीसी का कॉप होता है, वैसे यूएनसीसीडी का कॉप होता है, यूएनसीबीडी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉप होता है, ऐसे ही रामसर कन्वेंशन का कॉप होता है। लास्ट ईयर इट वाज कॉप 15 व्हिच वाज हेल्ड इन विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। वी रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन दैट पर्टिकुलर कॉप। तो वो एक अलग सेक्टर है, वहां पे भी आपको वाटर साइंटिस्ट या वेटलैंड एक्सपर्ट्स इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो वाटरप्रेन्योरशिप इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, जिसमें आप जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, आप लॉयर भी हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आप वाटर बॉडी रिजुविनेशन में भी काम कर सकते हैं, आप डैम रिहैबिलिटेशन में भी काम कर सकते हैं। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर स्कीम्स देखेंगे तो वाटर रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो मैंने आपको बताया, $240 बिलियन एवरी ईयर इज स्पेंट इन वाटर एंड वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, अमृत 2.0 है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन अमृत सरोवर है। So there are so many mission mode projects from government of India which are directly related to water. अटल भूजल योजना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट है। सो वाटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट द इंटायर डोमेन ऑफ वाटर। उसमें क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज वाटरप्रेन्योरशिप। जो अभी लास्ट मंथ, आई थिंक 29th of January, there was a Indo-Israel summit, symposium and hackathon held in GH Raisoni University, Nagpur. That entire session was on waterpreneurship, जो मेरी presentation थी वहाँ पे। So there are multiple domains which are all linked to water, and जो youngsters हैं जो अभी अपना career बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो there are immense opportunities in water sector. That is why we came up with this idea of waterpreneurship. Wow, that's amazing. In fact, we'll put in your LinkedIn ID and your email ID also in this YouTube description of this podcast. But if, let's say, if I want to join your this amazing initiative as an water entrepreneur of my local regions, and what are the criteria? How can I check that whether I'm eligible for this or not? सर एलिजिबिलिटी का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज टू अंडरस्टैंड वेदर यू वांट टू बी इनटू दैट सेक्टर। सेकेंड स्टेप है जिसमें देर इज अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल विच इज गिवन इन फॉर्म ऑफ योर यूट्यूब वीडियोज एंड पॉडकास्ट एंड अ लॉट ऑफ रिटन मटेरियल दैट यू हैव टू गो थ्रू। देन देर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग विच इज कंडक्टेड। एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है जो कि मेरे कलीग देखते हैं पार्टनरशिप्स, मैं नहीं देखता हूँ। तो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है जिसको पार्टनर साइन अप करते हैं। देयर इज अ पार्टनरशिप फी which they need to deposit, and then once all those paperwork are done, then we train the partners के आपके पास कम से कम 4-5 मैन पावर ऐसी होनी चाहिए जो कि इस पार्टनरशिप के अंडर ट्रेन की जाए, and then they are able to go and present themselves कि भाई मेरा फला फला कंपनी है and I am into this sector and this is what I am doing and these are the services that I can deliver. जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन पीपल आर कॉन्फिडेंट एनफ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ। हम उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट व्हिच इज टेकन, एंड व्हेन वी फाइंड देम अप टू द मार्क, then we give them a authorization certificate to quote, bid and negotiate using our technology. Then they can pick up projects in their region. There is a proper milestone which they have to sign, जो कस्टमर के साथ वो एग्रीमेंट साइन करते हैं,
and then they can start executing the project with a complete technology handholding from our side. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. Oh, I'm sorry. So Yeah. it's not an easy, or it's not open for all, but there are a rigorous process which one need to undergo through so that he'll be eligible and he'll be able to Yeah, join as it is definitely open to all, but the training is necessary because this is something. जैसे मैंने अभी बहुत सारी बातें ऐसी बताई होंगी जो आपने भी शायद पहली बार सुनी होंगी. While you have been interviewing all sorts of experts, right? ये मेरे ख्याल से आपका 160th एपिसोड है, right? तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन वैदिक साइंस की, that is why it is out of syllabus for most of the people. इसलिए true, ट्रेनिंग इज मैंडेटरी. true. That's true. Training is mandatory, and proper understanding is also required. That's true. So, what advice would you give to your young entrepreneurs or startups who wants to work in, especially in sustainability, but fear financial or market challenges? You were three partners having good, financial supports, and that's why yours is a bootstrap. But everybody does not have that financial freedom key. They can do a bootstrap venture. So what is your advice for them? तो मेरा एडवाइस तो बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि इफ यू वांट टू गेट इनटू अ बिजनेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यू फर्स्ट हैव टू केयरफुली थिंक अबाउट योर बिजनेस स्ट्रैटेजी. क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी के बिजनेस में और खुद सस्टेनेबल नहीं हो तो ये आपस में जेल नहीं कर रहा है, राइट? सो यू विल हैव टू केयरफुली थिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजी, और उसके लिए जो मूल मंत्र है फॉर एनी प्लानिंग, दैट इज द स्वॉट एनालिसिस. आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट को एनालाइज करो, और ये आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता. बिकॉज जब आपको अपने बारे में सोचना है, आपको मालूम है आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, राइट? तो सबसे पहले तो आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, आपको सोचना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर फॉर एनी स्टार्टअप टू बी सक्सेसफुल इज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप. देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता. मैंने आपको बताया डिजाइन डिफेक्ट है. जो आदमी इन्वेंट कर सकता है वो मार्केट नहीं कर सकता, जो मार्केट कर सकता है वो इन्वेंट नहीं कर सकता. हम लोग 3 फाउंडर्स क्यों हैं? इसलिए बिकॉज हम तीनों के कंप्लीटली अलग अलग डोमेन्स हैं जो कि कहीं भी ओवरलैप नहीं करते. जैसे मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप मेरा डोमेन नहीं है. आई डोंट साइन अप पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स. आई डोंट अंडरस्टैंड कॉमर्स. आई डोंट अंडरस्टैंड फिगर्स. सो वो सारा जो डोमेन है वो मेरे कलीग का है, चंद्रशेखर जी देखते हैं. whenever it is signing up of an agreement or giving commercial values for a project, वो काम मेरा नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर हम दोनों बाहर हैं तो ऑपरेशन तो चलते रहना चाहिए, राइट? जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारा ऑपरेशंस है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो सब पंकज देखते हैं. सो वी आर 3 people handling 3 different domains which are non-overlapping. Rather तो complementary to each other. या तो जब भी आप स्टार्टअप क्रिएट करना चाह रहे हो, आपको राइट काइंड ऑफ पार्टनरशिप की जरूरत है इन द फाउंडिंग टीम इटसेल्फ. फाउंडर और को फाउंडर should come together. Number 1, there should be a mental sync. Number 2, there should be no competition amongst themselves. And number 3, the domain should not be overlapping. तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है. मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि वी वर ऑल मैच्योर्ड प्रोफेशनल्स. बच्चों में थोड़ा सा वो बचपना भी होता है, वो इमेच्योरिटी भी होती है, बट देन आप देखिए ना, जो चाइल्डहुड दोस्ती होती है वो तो चलती है ना लाइफ लॉन्ग. True, दूसरी agree. तीसरी में जो बच्चे जो क्लासमेट होते हैं वो 70-80 साल तक साथ रहते हैं. क्या True, उनके बीच में क्या मन मुटाव नहीं होते? 4 बर्तन होते तो खड़केंगे ही. very true. बट दैट ब्रदरहुड वाला जो फीलिंग होता है ना, जो फ्रैटर्निटी वाला फीलिंग होता है, दैट ऑलवेज ओवरकम्स ऑल द कम्युनिकेशन गैप्स.
So that is how you should find the right kind of partners and then think about how to move ahead. ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि मेरे ख्याल से हर स्टार्टअप को करने चाहिए बिफोर दे प्लान टू एक्चुअली गेट इनटू बिजनेस. Well explained. Well explained. So you have represented Bharat at global platforms like G2O, COPs, and international summits. So, what is one global insight that truly stayed with you? तो मेरे को तो लगता है इट इज़ द राइट टाइम एंड द राइट टाइम फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ भारत. क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ व्हेन आई एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग, आई मीन पीपल वेलकम अस विद ओपन आर्म्स कि यार आप लोग जो कर रहे हो भारत में वो वहां अभी हमने सोचना भी स्टार्ट नहीं किया है. जैसे यूएनएफसीसी का जो कॉप होता है, लास्ट ईयर वी हैड 30th कॉप. 30 कॉप समिट्स हम कर चुके हैं एंड वी आर स्टिल एट द लॉगर हेड्स कि डेवलप्ड कंट्री पे करेगा या डेवलपिंग कंट्री पे करेगा, डेवलपिंग कंट्री अपना एमिशन कट करेगा या डेवलप्ड कंट्री अपना एमिशन कट करेगा. अरे तुम अगर थियोरेटिकली स्पीकिंग तुम आज की डेट में एमिशन जीरो कर देते हो ना, देन ऑल्सो यू कैन नॉट रिवर्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द लिगेसी एमिशन विच इज ऑलरेडी देयर इन द एयर. आप सोचिए ना, जो पहला एमिशन चालू हुआ था दैट वाज फ्रॉम स्टीम इंजन ना, 17th सेंचुरी. उसका एमिशन सोच लीजिए कितना होता था. आज हमारी भारत 6 गाड़ियों में कितना होता है. तो True, आज तो उसका मतलब 0.1% भी एमिशन हम नहीं कर रहे हैं. तो फिर क्यों आज प्रॉब्लम है, तब नहीं थी. बिकॉज तब एमिशन वाज लोकलाइज्ड इन ब्रिटेन. टुडे एमिशन इज ग्लोबलाइज्ड. वी हैव मैक्सिमाइज्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ एमिशन, true, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 400 साल का लेगेसी एमिशन है विच इज ऑलरेडी देयर इन द एयर, पहले हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा ना. तो हमने एमिशन के नए उपक्रम बनाए हैं, तो हमें सिक्वेस्ट्रेशन के नए उपक्रम बनाने पड़ेंगे. हमने true. सारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करके रखा है विच आर द नेचुरल कार्बन सिंक्स. अगर हम उनको भर को रिस्टोर कर लेना, जो भारत में जो 25 लाख वाटर बॉडीज हैं, अगर उनने सबको हमने हेल्दी कर दिया, इंटायर भारत विल बिकम अ कार्बन सिंक. Wow. जो आज की डेट में वर्ल्ड में देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज भूटान, विच इज अ कार्बन सिंक. I mean, just imagine a country of the massive size of Bharat, if that becomes a carbon sink, आपकी emission की problem ही खत्म हो जाएगी globally. So we have to set the right examples to lead the world. So आज की date में the world is ready to accept Bharat as one of the forthcoming leaders. आप देखिए ना, इंडिया स्टैक में हमारे पास क्या क्या है. हमने जो अपना यूपीआई स्टार्ट किया, ठीक है. हमने जो वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने पेरिस अकॉर्ड के सारी कमिटमेंट्स पूरे किए टाइम से पहले, राइट. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है. आप नेम अ सेक्टर वी आर लीडिंग द वर्ल्ड. एआई रेस में, मतलब हम ये सुनते आ रहे थे ना कि भाई इंडिया हैज मिस्ड द बस. इंडिया इज एक्चुअली लीडिंग इन एआई. सो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, बिकॉज भारत डज हैव दैट पोटेंशियल एंड द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट. आप सोचिए ना कि अब से पहले तो कभी ईयू ने एफटीए नहीं साइन किया भारत के साथ. वो उर्सुला फैंडर जो आई थी, उन्होंने बोला कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स. उसके बाद यूएस को भी डील साइन करनी है, सऊदी को भी करनी है, यूएई को भी करनी है, ब्रिटेन को भी करनी है. हाउ हैव वी साइंड सो मेनी एफटीए डील इन सच अ शॉर्ट स्पैन? इट इज ओनली बिकॉज वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट. बट अकेले मोदी जी तो सब काम नहीं कर सकते ना. आम आदमी का भी कुछ दायित्व है. तो हम अपना निभा रहे हैं, यंगस्टर्स को अपना निभाना चाहिए. Yeah, instead of complaining, we'll have to start working towards it as an active or as an passive supporter of this initiative, but we'll have to.
So, how is India perceived globally when it comes to sustainability and environmental leadership? सर इसमें तो आई वुड से मतलब अभी तक हम कोई 10-12 इंटरनेशनल इवेंट्स में विच आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जैसे आपका यूएनएफसीसी का कॉप है, सीबीडी कॉप है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड कॉप है, यूएनसीसीडी का कॉप है अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन। एक और इवेंट है जो कि एनुअल बेसिस पे कॉप के साथ ही पैरेलली होता है, यूएनएफसीसी वाले कॉप के साथ ऑल्टर कॉप, जो कि हर साल सिंगापुर में होता है। ऑल दीज इवेंट्स वी हैव पार्टिसिपेटेड मल्टीपल टाइम्स, ईयर ओवर ईयर। तो एक चीज समझ में आती है कि बिकॉज भारत ने अभी यूएनएसडीजी रेटिंग भी चालू की है स्टेट बाय स्टेट, 2023 में पहली रिपोर्ट आई थी। उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, पेरिस अकॉर्ड के सारे टारगेट्स को अचीव करने वाले वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड वी आर डेवलपिंग, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड स्टिल we are maintaining our commitments toward the environmental restoration, uh, not doing emission to the extent of China or US. Right? हमारा जो per capita emission है, that is the least in the world. Right? तो ये बातें तो ग्लोबली ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग कि इंडिया इज डूइंग फिनोमिनल जॉब व्हेन इट कम्स टू environmental restoration. By and large, people have accepted that Bharat is the leader. तो और फिर जब हम जाके बात करते कि वैदिक साइंस में इतना कुछ है, तो फिर तो और लोग ज्यादा बाँझें खिल जाती हैं लोगों की। So where do you see this movement or your initiative heading in the next 5 to 10 years? सर देखिए, हमने भारत के बाहर जो ग्लोबल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया 2023 में, when we went out for the first time. Slush in Helsinki, Finland was the first international event that we participated in, except for G20, because G20 तो भारत में ही हो रहा था 2023 में, भारत had the presidency. तो जो स्टार्टअप शिखर जो हुआ था, which was the first, technically the first international event that we participated in, that was in Gurugram. तो दिल्ली एनसीआर में ही था, बट आर फर्स्ट आउटसाइड इंडिया इवेंट वाज स्लश इन 2023। तो अभी जो पीछे 3 साल का जो ट्रैक्शन रहा है, उससे हमको ये समझ में आता है कि नेक्स्ट अबाउट 3 to 5 years we will be having at least 2 to 3 international operations, 2 to 3 international projects, and ambition तो हमारा यही है कि विद इन नेक्स्ट 3 years कम से कम भारत के हर स्टेट में हमारा कम से कम एक पार्टनर, एक प्रोजेक्ट तो हो, all states and union territories, so that we can set the right example for the world to follow. So that is what we look forward to in next 3 to 5 years. एक तो इंडिया में inclusive of the northeastern state, all the seven sister states, inclusive of लक्षद्वीप एंड अंडमान, हमारा हर जगह कम से कम एक पार्टनर हो, कम से कम एक प्रोजेक्ट हो, and we should be having at least 3 outside of the country offices wherein we are doing projects. That's amazing. Wishing you the best for the same. So, are you guys still bootstrapped or planning to have some equities or angel investors or fundings in the future? What are your plans? Because so far we are bootstrap, and we want to remain a bootstrap because we are already profitable, and the operation is going quite smooth. हम कोई ऐसा फंडिंग और डोनेशन लेके इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जाते। जैसा मैंने आपको बताया, मोर देन 10-15 इंटरनेशनल इवेंट्स वी हैव पार्टिसिपेटेड, एंड वी आर ऑल सेल्फ फंडेड। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनसे जो प्रॉफिट आता है वी री इन्वेस्ट इन टू द कंपनी. So that is how we are expanding and that is how we are growing. तो अभी तो बूटस्ट्रैप ही रहने का प्रोग्राम है.
या जो एग्री टेक है उसमें वी आर जस्ट थिंकिंग के हाउ टू स्केल इट अप, बिकॉज एज अ पॉलिसी, एज अ कंपनी वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट बी टेकिंग एनी मनी फ्रॉम अ फार्मर और फ्रॉम अ गौशाला। ये हमारा अपना एक अपना रिजॉल्व है। तो अब हम काम कर रहे हैं एग्रीटेक में, जिसमें फार्मर्स के लिए ही काम है, गौशाला में जो गैया है उसको निरोगी बनाने का ही काम है, और हमको इन दोनों से ही पैसे नहीं लेने हैं। तो वी आर जस्ट contemplating on what should be the go to market strategy on agri-tech sector, and that is where we are open to collaborate even with a financial partner if we get a market traction through that. So Uh, yes, that is where we can think about. I must appreciate that your fundamentals are very clear. कि you are clear what not to do, Yeah. सो रेस्ट इज ऑल क्लियर। मतलब लाइफ में आपको क्या नहीं करना है वो क्लियर है, तो बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाती है। सो दैट इज वेरी क्लियर इन योर केस। सो ये सब इफ उपनिषद का ही ज्ञान है सर। एक वन ऑफ द उपनिषद इज कॉल्ड कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता की स्टोरी है, और उसमें ये समझाया जाता है कि नचिकेता ज्ञान लेने के लिए यम के पास जाते हैं, और यम बोलते हैं भाई तेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो हर चीज में ना 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 करता जाता है कि ये जो नहीं चाहिए वो तो क्लियर है, अब जो बच जाएगा वो चाहिए। तो जो बच गया वो सिर्फ भगवान है, तो वही चाहिए तेरे को। so, ये सब अमेजिंग उपनिषद अमेजिंग, का ही ज्ञान है सर। and that's reflecting very much in our conversation, so that's great. So if the world adopts just one mindset shift for the environment, what should it be? So that should be to number one, understand the nature. जब आपको नेचर समझ में आएगा ना, जैसे इफ यू जस्ट थिंक अबाउट भगवत गीता, तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के पास जाता है कि भाई मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, आप मुझे उपदेश करें। तो वो उसको समझाते रहते समझाते रहते समझाते रहते हैं, और वो सवाल पे सवाल पूछता रहता है, बट फाइनली जब वो विराट रूप देखता है तो बोलता भाई मेरे बस की नहीं है इसको सहन कर पाना, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, राइट? सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड विराट रूप ऑफ कृष्ण, यू विल बिकम अ डिवोटी। नेचर वही विराट रूप है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड इट, you will absolutely start living in harmony with nature. It is just a lack of understanding. ये जो माइंडसेट हो गया ना कि वी आर गॉड्स गिफ्ट टू द प्लैनेट एंड एवरीथिंग वी हैव इज सपोज टू बी कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बीइंग क्या है, व्यक्ति है, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ नेचर, लाइक ए कैट, लाइक ए डॉग, लाइक अ हॉर्स, लाइक अ ट्री, नदी, जंगल, पहाड़, ये सब एक्सप्रेशन ऑफ नेचर हैं। ये बात जिस दिन इंसान की समझ में आ गई, ये सारा जो डेवेस्टेशन है वो रुक जाएगा, and the entire planet will go sustainable once again. So we just need to understand nature. We'll start respecting it by default. So rest will follow, you rightly say. सो हाँ, वैसे तो हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल रिवाइविंग इट, हाउ कैन पीपल कनेक्ट विथ यू और विथ योर कनेक्ट विथ और सपोर्ट द वर्क यू आर डूइंग? सर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो डूअर्स हैं, एक वो जो बेनिफिशियरी हैं। देखिए हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फौना, नेचर, सब चीज इम्पैक्ट होता है। अब जैसे हमने एक काम किया, यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस सिटी कॉल्ड मुरादाबाद, ब्रास कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है? वहां पे हमको 2022 में पहली बार प्रोजेक्ट मिला। उसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि 2009 से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ था। दे हैड द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उनका AQI जो मॉनिटरिंग टावर था पहली बार 2017 में लगा था। 2017 से 2022 तक 365 दिन हर साल के उनका AQI 300 के ऊपर ही रहता था। गुड AQI इज बिलो 80, ठीक है? उनका 300 के नीचे कभी गया ही नहीं।
वहां पे हर साल जो वेक्टर और वाटर बोर्न डिजीज है वो पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, पिछले 3 साल से, 2019 में। जबकि कोविड की बात है, ये 2020 में तो कोविड आ गया था। 2020, 2021, 2022 हर साल नंबर ऑफ वेक्टर एंड वाटर बोर्न डिजीजेस पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देते थे। हर साल मॉनसून में पूरा सिटी फ्लडेड रहता था। ये कंडीशन में हमको वहां पे 6 वाटर बॉडीज मिली। राइट? आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि 2009 से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ था, अगस्त 2022 में, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना हमने काम किया है, 6 वाटर बॉडीज में ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्टार्ट हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा है। ड्यूरिंग मानसून कहीं पे भी फ्लड नहीं हुआ। ठीक है, फ्लड नहीं होता है तो जो लाइवलीहुड है वो डिसरप्ट नहीं होता है, लोगों की कमाई चलती रहती है। दे हैड अ नोज डाइव ऑफ लोवेस्ट केसेस इन लास्ट 4 years इन वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस पोस्ट मानसून। और दिसंबर 22 में दे वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट वर्क इन एयर पोल्यूशन मिटिगेशन। 75 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड मिला मुरादाबाद नगर निगम को। राइट? तो अब आप अगर बेनिफिशियरी देखें तो 1 million of the existing population and 1 million of the floating population of Muradabad has been benefited. तो 2 मिलियन लोगों को हमने एक शहर में बेनिफिट पहुंचाया। अपार्ट फ्रॉम जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द फार्मर्स हुआ, वो सारी चीजें हुई। तो बेनिफिशियरीज वर 2 मिलियन पीपल। राइट? नंबर ऑफ पीपल हु गॉट इन्वॉल्व इनटू वर्किंग, मैं कहूँगा नगर निगम, हमारे जो पार्टनर है नी टेक्नोलॉजी, नीरज जी हैं, उनकी टीम के अबाउट 6 वाटर बॉडीज में, हर एक में आप लगा लीजिए कि 4-4 लोग काम कर रहे थे, तो 24-25 लोग वो हो गए। उसके अलावा जो एडहॉक बेसिस पे जो लेबर्स आते थे, दैट वुड बी अबाउट 10 पर साइट, तो मतलब 60 लोग वो हो गए। तो ये कोई 150-200 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो बेनिफिशियरीज थे देवर 2 मिलियन पीपल। राइट? तो दोनों तरह के लोग हैं। अब ये जो 2 मिलियन पीपल हैं, इनको यदि ये समझ में आए कि हमारी जो स्थिति में सुधार हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडी, तो वो कम से कम जाके उसको इंटेंशनली पोल्यूट तो नहीं करेंगे। राइट? सो ये एक तरीका है जुड़ने का। दूसरा तरीका तो ऑफ कोर्स आपने बताया ही है कि any of the entrepreneurs who want to become our partner, they can very well log on to our website and leave an inquiry, and our team will get in touch with them. वो ट्रेनिंग वगैरह लेके जब when they are ready then they can go out in the market. मार्केट में पैसे की कमी नहीं है। मैंने आपको बताया भारत सरकार $240 बिलियन इन्वेस्ट करती है हर साल ओनली इनटू वाटर एंड वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो आप सोचिए, इतना इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से डिफेंस के अलावा और कहीं नहीं होता। सो आपकी ये जो सॉल्यूशंस है, ये जो 5 सॉल्यूशंस आपने बताए, मतलब हाउ दे आर, मतलब दे आर कॉस्टली और इकोनॉमिकल, जस्ट आई एम श्योर कि परफेक्ट फिगर तो आप नहीं दे सकते बिकॉज इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज एंड एवरीथिंग, बट अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो दे आर हाउ दे आर कॉस्टली और इकोनॉमिकल क्या है, मतलब कैसा है? देखिए सर, किसी भी चीज़ को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम कोई भी 2 चीज़ों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें कि भाई सोनी का एलईडी टीवी महंगा है कि सैमसंग का एलईडी टीवी महंगा है। राइट? और दूसरा ये होता है कि इससे जो टैंजिबल और इनटैंजिबल बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं उनको हम वैल्यू करें। राइट? तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर वाले को एयर के बारे में नहीं मालूम, एयर वाले को सॉइल के बारे में नहीं मालूम, सॉइल वाले को ग्राउंड वाटर का नहीं मालूम, जिनको ये चारों मालूम है इनको बायोडाइवर्सिटी नहीं मालूम। तो अगर आपको एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए तो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। बट जैसा आपने सवाल पूछा कि एक बॉल पार्क फिगर आदमी के दिमाग में चाहिए होती है कि आर यू एक्सपेंसिव और आर यू चीप और यू आर इन मिडिल।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कंपैरिजन कमर्शियल कंपैरिजन का कैन कम आउट विद अ टेंडर. सी टेंडर इज अ वंडरफुल सिस्टम जिसके अंदर यदि कस्टमर को मालूम है कि उसको खरीदना क्या है तो ही विल नेवर गेट फूल्ड, ही विल ऑलवेज बाय राइट. राइट. तो लेकिन अगर कस्टमर को मालूम ही नहीं उसको खरीदना क्या है, अब गाड़ी खरीदनी है, उसने टेंडर निकाल दिया वी जस्ट वांट अ फोर व्हीलर, तो भारत में तो इतने इनोवेटिव लोग हैं वो थ्री व्हीलर में एक एक्स्ट्रा व्हील लगा देंगे, बोले ले भाई कंप्लाइड. राइट. तो जो अभी मैंने आपको मुरादाबाद का जो केस स्टडी बताया, मुरादाबाद का ही अगर हम एग्जांपल लें तो जो टेंडर था जो 2021 में निकला था, जो 2022 मार्च में जो डिसाइड हुआ था, दैट वाज अ टेंडर फॉर 6 water bodies spread over 28 acres, and the project was to be done for 18 months, creating an impact in soil, water and air, groundwater as well as biodiversity. ये पांचों उसके अंदर टेंडर में क्लियरली मेंशन थे. एंड द कस्टमर वाज वेरी कैटेगोरिकल कि मैं किसी को नॉन कंप्लायंस की वजह से बिड रिजेक्ट नहीं करूंगा, एवरीबडी इज वेलकम. सो दे रिसीव्ड 6 बिड्स विच क्लेम के हाँ हम ये काम कर सकते हैं. उसके अंदर बायो रिमीडिएशन था, फाइटो रिमीडिएशन था, डीवेट्स था, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड था, कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड फाइटो था, एंड हमारा टेक्नोलॉजी था. इसमें 6 बिड में जो हाईएस्ट बिड था दैट वाज 30 करोड़. 18 महीने का प्रोजेक्ट, 28 एकड़ की 6 वाटर बॉडीज. राइट. सेकेंड लोएस्ट बिड था दैट वाज फ्रॉम अ कंपनी विच हैड कोटेड 12 करोड़, और हमारे पार्टनर जो नी टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने जो प्रोजेक्ट उठाया था दैट वाज इन 5 करोड़. सो अगेंस्ट अ 5 करोड़ जो सेकेंड लोएस्ट था दैट वाज 12 करोड़, मतलब मोर देन डबल. सो इट इज नॉट चीप but it is economically viable. 5, 12 and 30, there is a huge difference. Yeah, true. So we can say it's economical, matlab it's not too costly. Yeah. Great. So despite the global economical crisis, what gives you hope today? The global economical crisis के साथ ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी है, तो हमारे लिए तो मार्केट ही मार्केट है ना. देखिए True. एडिडास और नाइकी के दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अफ्रीका भेजा गया. उनको बोला गया ये मार्केट सर्वे करके आओ कितना मार्केट है. ठीक है. तो एक ने रिप्लाई भेजा कि भाई अपने लिए यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, कोई जूते पहनता ही नहीं है. दूसरे ने रिप्लाई भेजा कि यार यहाँ तो इमेंस मार्केट पोटेंशियल है, किसी ने जूते नहीं पहने हुए, हम सबको पहना सकते हैं. So, Send stocks, send me stocks. There is a yeah, huge demand. कोई पहनता ही नहीं है, so we can send bulk of shoes here. That's the it is purely a matter of how you are looking at things. आप जितना ही स्क्रिप्चर्स को स्टडी करेंगे ना आप उतने पॉजिटिव होते जाएंगे. मतलब 2024 में वी पार्टिसिपेटेड इनटू टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज. वहां पे एकदम यंगस्टर्स की भीड़ थी. जस्ट अ कपल ऑफ पीपल हु हैड क्वालिफाइड वर अबव 40 काइंड्स, बाकी सब बिल्कुल यंग लड़के थे. तो उसमें एक लड़का था गौरव द्विवेदी हु इज इन बिजनेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एयर एंड देन टर्निंग इट इनटू ग्रेफाइट. तो अच्छी लड़कों से सबसे दोस्ती होगी, तो वो कहता है सर आप इतना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखते हो, आप हर चीज को पॉजिटिवली लेते हो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉल्यूशन का पॉजिटिव पॉइंट क्या है. मैंने कहा भाई अगर पॉल्यूशन होता ही नहीं तो तू और मैं मिलते ही नहीं ना. Everything has got a positive side, everything has got a negative side. It's purely up to you which side are you looking at. So I can feel that energy during our conversation. Since last almost 1.5 hour we are doing the conversation, and this will be one of the longest podcast which we have done ever. So I must say, ki, yeah, that energy is. I can feel that energy. So you are doing great, amazing. So, what will be your final words, your concluding notes, your final message for our audience? सर हमारी भारत की सारी ऑडियंस को तो मैं यही बोलूंगा कि कनेक्ट टू योर रूट्स. बाय डिफॉल्ट यू विल बी प्राउड ऑफ द कंट्री दैट यू आर बोर्न इन. Stay बाय grounded. डिफॉल्ट
yeah, by default, you will have that confidence in you that you come from a race which is the longest surviving continuous civilization on the planet and which is only Bharat. तो True, जब true, तक true. आपको अपने ऊपर गर्व नहीं होगा ना, आप वर्ल्ड को तो फेस कर ही नहीं सकते. Agreed, So agreed. get connected to your roots and rest everything will fall in place. आई एग्री That is, विथ यू। छोटी छोटी सी चीज जो अपने इंडियन रिचुअल्स में या जो अपने वैदिक परंपरा में जो छोटी छोटी बातें ना, जैसे मतलब घर में सुबह शाम घंटी बजाना, वो दिया है उसको मतलब आँख पे लगाना, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट छोटी-छोटी चीज़ें भी दे आर सो साइंटिफिक, कि मतलब लोग हीलिंग थेरेपी में के नाम पे, म्यूजिक थेरेपी के नाम पे हज़ारों रुपए देते हैं। मतलब वी डोंट नीड टू, सुबह शाम पूजा करो, बेल बजाओ तो यू गेट दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये छोटे-छोटे एग्जांपल्स है, बट यू राइटली सेड कि कनेक्ट स्टे कनेक्टेड विथ योर रूट्स एंड एवरीथिंग इज देयर इन आवर वैदिक परंपरा। सो ट्रू, वेरी ट्रू। सो आपने मेरी जो ये बिलीफ थी उसको आज और स्ट्रांग कर दिया, थैंक्स टू यू। एंड स्टे ग्राउंडेड, दैट्स द टेक अवे फॉर मी। एंड बिलीव इन आवर कल्चर, जो एक एक छोटी छोटी चीज हमारे कल्चर में थी, दैट हैज अ मीनिंग, दैट हैज एन इमेंस मीनिंग, उसका एक सर हमारे साथ बड़ा ही। प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि हम लोग ने रिचुअल्स को फॉलो किया और रीजनिंग को भूल गए. तो उसकी वजह से मतलब मैं तो कई बार अभी कॉलेजेस में जब लेक्चर लेता हूँ तो मैं बच्चों को समझाता भी हूँ कि यार तुम्हारे पास ना लेटेस्ट मॉडल फेरारी है विच कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तुम ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हो. अब तुम्हारी गाड़ी में कोई खराबी आ गई और तुम वहां रास्ते में खड़े हो गए, पीछे से एक अंग्रेज आ रहा था बैलगाड़ी में, उसने बोला अच्छा तुम्हारा टीन का डब्बा पीछे बांध लो और बैलगाड़ी में बैठ जाओ. अब तुम उस पर जाने लगे, 100 किलोमीटर चलने के बाद तुमको ये बिलीव हो गया कि यार बैलगाड़ी अच्छी है फेरारी से. दैट हैज व्हाट हैज हैपेंड विद अस. ट्रू। हमने क्योंकि अपने साइंस को समझा ही नहीं, हम रिचुअल्स को ट्रेडिशन मान के फॉलो करते रहे, उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश ही नहीं की. गोरा एंड साहब चले गए तो भूरा साहब आ गए, भूरा जो साहब ने थोड़े भी से कोई रिसर्च नहीं किया. जो थोड़े से और मॉडर्न है, उसको वो रिचुअल्स को सुपरस्टिशन का नाम भी देते हैं, तो एग्जैक्टली, दैट इज वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये रिचुअल के पीछे का रीजनिंग क्या है. जैसे मैंने आपको दक्ष प्रजापति की स्टोरी बताई, उससे ज्यादा साइंटिफिक कोई स्टोरी ही नहीं हो सकती. ट्रू, 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 अमेजिंग। जस्ट Everything has got science behind. We are the most scientific society in this world, provided the youngsters start delving deeper into the scriptures and start understanding the reasoning behind the rituals that we have. Everything is scientific. amazing. Just love the conversation. It was amazing. And thank you for joining us today and sharing your wonderful knowledge. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम. एंड अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो 1 घंटा 50 मिनट हो गया है. आई गेस दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट यू वुड हैव हैड. आपने इतना टाइम दिया, आई एम सो थैंकफुल दैट यू स्पेंड My सो मच ऑफ pleasure. टाइम. My pleasure. Thank you so much. And just loved it. यस, आई एम श्योर ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंड बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विपुल द वंडरफुल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट आवर रेगुलर अपडेट्स। हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहेंगे एवरी वीक, विल कम एंड शेयर देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, दे विल शेयर देयर आइडियाज विच विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस। सो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्सपर्ट. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, एंड दिस सेशन वाज पावर्ड बाय पोस्ट resume. So visit our website and connect with us if you're looking for any help, any talent solutions, any career guidance, any support. We will be happy to help you. So with that note, see you next time. Thank you so much.